हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्टडी सर्कल द्वारा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल ज्यूरिप्रूडेंस इस लेक्चर का शानदार आयोजन किया गया था। मुंबई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रताप वी हरदास साहब इनका लेक्चरर सुनने के लिए सभागृह में अधिवक्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं हाईकोर्ट के उस सभागृह में जहां पर ये लेक्चर का आयोजन किया गया था और इस मौके पर कारा न्यूज से तमाम अधिवक्ताओं ने इस लेक्चर को लेकर समाधान व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे इनके नागपुर हाईकोर्ट सभागृह से ये ग्राउंड रिपोर्ट। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब में, आइए देखते हैं। Good evening to all of you. Senior Administrative Judge Justice Sandurkar and esteemed judges of this bench, Justice Dharmadhikari, former Chief Justice, of suppose that I was here in Nagpur for nearly a year and a half, and I had dealt with the criminal appeals which had been listed before me. Now, during the process, in the first month itself, I noticed that whenever a junior or a person who had put in, say, about 10 years of practice, when he appeared before the court, he was absolutely blank in the sense that he was not ready with the brief. One of the members of this bar association went to an extent of saying that, "My lord, I want an adjournment because I'm not ready with the brief." I was constrained to say, but I'm sorry to say again, with very little impression on the person concerned, I told him that if I was in your place, I would be ashamed to make such a request. In High Court, at least here, we do not have original jurisdiction. In sense, in all matters, evidence is not recorded. So, whatever evidence is recorded by trial court, it comes to this court and it is then reappreciated. First appreciation is by the trial court. Particularly to me, not practicing in trial court is an immense disadvantage for every advocate. How to bring facts on record, how to prove a document, which question needs to be asked, which question need not be asked or should be avoided, are all the considerations which you learn to weigh when you prepare for conducting examination in chief. All members are again desperate to hear your lordship on dying declaration and other subjects also. Sir, today I have realized why your lordship was insisting to read section 3 of Evidence Act. It's a foundation of the Evidence Act. Today I am here to share a good news and to make announcement. HCBA Study Circle is almost a decade old and it's a pioneer project. The Executive Committee and Study Circle Committee is working hard to groom the budding lawyers
by inviting eminent speakers. We are all familiar with late senior advocate Shri Vinod Bobde, who needs no introduction. थैंक यू कारा न्यूज़। संजय मीरे जी, आप हमेशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती है उसको आप बहुत अच्छे से कवर करते हो, समाज में उनको रखते हो, जिससे सभी नागरिकों को ये पता पड़ता है कि हाईकोर्ट के जो मेंबर्स है वो कितने एक्टिव है और वो कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने प्रोफेशन के लिए काम भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट and for covering our activities. Thank you, Kara News. I am also grateful and thankful to Mr. Arjun Vinod Bobde for his valuable donation and contribution for the upcoming projects under the study circle activity. Thank you, Arjun ji. दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारण न्यूज़ की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट के उस सभागृह में जहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रताप वी हरदास इनका एक लेक्चर आयोजित किया गया था, जिसका विषय था कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ये जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम की जो आयोजक थे वे थे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्टडी सर्कल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। बखूबी के साथ ये कार्यक्रम चला। सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ के अधिवक्ताओं ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया और किस किस तरह से कैसे कैसे बातचीत कोर्ट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हरदास साहब ने जिस स्टाइल में, जिस अंदाज में ये जो बात कही है, जिसका फायदा आने वाले समय में शहर के अधिवक्ताओं को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस समय में हमारे साथ में अरुण विनोद जी बोबड़े साहब भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे। बोबड़े साहब, आप पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे, कैसा लग रहा था, कैसा लगा आज जो विषय था, कितना महत्वपूर्ण है? कार्यक्रम बहुत अच्छा था और जो सब्जेक्ट पे हरदास साहब ने बोला है, जो लीगल एस्पेक्ट्स पे हरदास साहब ने चर्चा करी है, वो स्टूडेंट्स को, बडिंग लॉयर्स को और कोई कोई इवन सीनियर लॉयर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है। जो इन्होंने साइटेशंस रेफर करे हैं इस चर्चा में, वो भी बहुत हेल्प करेंगे लॉयर्स को और जूनियर लॉयर्स को भी इसमें। तो बहुत अच्छा लेक्चर था और ये जो इनिशिएटिव लिया है स्टडी सर्कल ने, इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल इनिशिएटिव फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द नॉन लॉयर्स हु माइट बी लिसनिंग। बिल्कुल। आज आपका भी यहाँ पे सम्मान किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हो, कितना महत्वपूर्ण था? मेरे लिए महत्वपूर्ण था बिकॉज ये मेरी फादर की मेमोरी के लिए किया गया, विनोद बोबड़े जी, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ यहाँ पे अधिवक्ता लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। अधिवक्ता बनने के लिए तजुर्बा चाहिए, उम्र मायना नहीं रखती, क्योंकि आज हर उम्र के लोग आज अधिवक्ता दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने बोबड़े साहब से कहा, आप भी युवा हैं और भी एक युवा साथी जुड़ चुके हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण लग रहा है जूनियर बोबड़े साहब? बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। ये मोमेंट मेरे ग्रैंडफादर की मेमोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस विल इमॉर्टलाइज इट। थैंक यू। बिल्कुल। और भी कुछ अधिवक्ता मोहतरमा है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे अच्छी बात हरदास साहब की क्या लगी आज? द वे ही रेफर्स साइटेशंस, जो उन्होंने साइटेशंस रेफर करे और जो उन्होंने साइटेशंस के थ्रू एजुकेशन दिया है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल लॉयर्स, स्पेसिफिकली द लर्निंग लॉयर्स, जो जूनियर्स अभी आएंगे इसके बाद, उनके लिए, सबके लिए। हाउ टू लाइक ट्रायल कैसा होना चाहिए, एविडेंस कैसे अप्रिशिएट होना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने समझाया है, इज वॉज वेरी गुड। बिल्कुल। फौजदारी प्रक्रिया और उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाए, इस बारे में काफ़ी अच्छी उन्होंने जानकारी दी। और भी कुछ अधिवक्ता है जो उस बाजू के रूम में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आइए उनके पास भी चलकर उनसे भी जानना चाहेंगे आज के इस जो एक अच्छा शिक्षा का जो कामकाज हुआ है उसके बारे में। आज के इस प्रोग्राम के बारे में हमने कई अधिवक्ताओं से बात की। उन्होंने ये बताया, आप अपने अनुभव को शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी है कि ये कार्यक्रम जो हुआ है कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, और भी कुछ अधिवक्ता हमारे साथ इस समय में कारण न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हरदास साहब ने जिस अंदाज में इस बात को बयां किया है, कितना महत्वपूर्ण है आने वाले जनरेशन के लिए? आज का जो सेशन था जस्टिस हरदास साहब का, ये बहुत ही एजुकेटिव और एविडेंस के प्रति उन्होंने जो बताया है कि क्रिमिनल ट्रायल में कैसे एविडेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये हम जैसे बहुत सारे जूनियर लॉयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनको सुनना। और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तरफ से, स्टडी सर्कल के तरफ से ऐसे कई लेक्चर्स हो, जिससे हम जैसे जूनियर लॉयर्स को काफ़ी कुछ सीखने मिले क्रिमिनल ट्रायल्स के बारे में, और एविडेंस के प्रति कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए,
ये हमारे लिए एक जूनियर लॉयर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसीलिए आज का उनका जो सेशन था वो एक बहुत ही एजुकेटिव और अच्छा सेशन रहा। बिल्कुल, हरदास साहब ने जिस अंदाज में फौजदारी प्रक्रिया और उसका जो मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए, कौन सी बातों को बात करना चाहिए, कौन सी बातों को नहीं बात करना चाहिए, ये जो एक टिप्स जो दिया है काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से दिया है, जिसका फायदा आने वाले दिन में कई अधिवक्ताओं को होगा और अपनी केस किस तरह से मजबूती के साथ रखे, ये भी एक बात उन्होंने आज जो बताई है अपने आप में। कई समय हमारे साथ में अधिवक्ता भट्टर जी भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। भट्टर साहब, क्या लगता है आपको आज का ये जो भाषण है कितना महत्वपूर्ण या संजीवनी का काम कर गया है? इसके पहले कि मैं भाषण के बारे में बोलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी सर्कल ये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एक पायनियर प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत अच्छे लीगल लिमिनरीज आते हैं और उनके थॉट शेयर करते हैं, जिसके कारण जूनियर्स एज वेल एज सीनियर्स दोनों को फायदा होता है उसका। आज का जो लेक्चर सीरीज था वो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस एंड ट्रायल कैसे चलाना इसके ऊपर था। इसमें हमको जो हरदास साहब ने बताया है, वो खुद एक लॉयर रह चुके हैं, क्रिमिनल साइड के प्रैक्टिस करने वाले। उसके बाद जब जज बने उन्होंने बहुत सी क्रिमिनल अपील्स भी डिसाइड की है एज हाई कोर्ट जज। आज उन्होंने जो बताया हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो विजन है अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड एज वेल एज एविडेंस, इसको हमको एक नई दिशा मिली है और हमको लगता है कि इसका फ़ायदा सभी जितने लोग आज उपस्थित थे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, तो आपसे भट्टर साहब, हमने तमाम अधिवक्ताओं से बात की। हम आपको बताते दर्शकों कि ये जो कार्यक्रम था, ये जो प्रोग्राम था, ये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्टडी सर्कल के तत्वावधान में इसको आयोजित किया गया था और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, ये जो एक टॉपिक जो दिया गया था, जिसके चलते आज बॉम्बे हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज है जस्टिस प्रताप वी हरदास, इन्होंने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया, जिसका कई लोगों को फायदा होने जा रहा है। ऐसा फायदा आप भी ले सकते हैं। यदि आप भी अधिवक्ता बनना चाहते हो तो स्टडी सर्कल में आके कई अधिवक्ता का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और आज का इस कामकाज से हर कोई अपनी केस मजबूत कर सकता है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और आज ही ये काम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से हुआ है। अतुल पांडे सर हो या फिर अमोल जलटारे हो या तमाम उनकी पूरी टीम हो, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी सराहना आज पूरे शहर के नागरिक करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नागपुर के बॉम्बे हाईकोर्ट से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज़, नागपुर।